Hello students, how are you doing? Let's start class 8th crop production chapter, some important terms. We have discussed all the chapter till date, but I want to tell you some more facts and some more terms which you can use in agronomy. Agronomy means agricultural field, okay? So agronomy is the subject. Already it is a stream of agriculture. You have lots of topics, you have lots of techniques for your learning. If you want to learn more, you can join the classes of agronomy in your higher classes, okay? So let's start with the chapter. The first topic is your transplantation. You can see in the image ladies are planting small plantlets. You have seen many times in the fields lots of people planting small plantlets. Why they are planting these plantlets? Generally we know that we sow seeds in the field, not plant small plantlets in the field. जनरली हम खेत में क्या करते हैं, जनरली हम बीज बोते हैं ना, पौधे नहीं लगाते. लेकिन कभी कभी हमने पौधे लगाते भी देखा है. तो ये पौधे लगाना और ये बीज डालना, what are known as these processes, इन processes को हम कहते क्या हैं? तो this process is known as transplantation. This is known as transplantation. In this process fully germinated seedling, मतलब कि matured plantlet is replanted in the permanent location or the crop field. इसमें क्या होता है, जो छोटा प्लांटलेट जब वो ग्रो हो जाता है नर्सरी में, पहले हम उसे कहाँ ग्रो करते हैं, नर्सरी में जब वो ग्रो हो जाता है तो वहाँ से उसे निकाल कर हम कहाँ भेज देते हैं, क्रॉप फील्ड में लगा देते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जर्मिनेशन के लिए जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन चाहिए होती हैं इन कुछ खास टाइप के प्लांट्स को, वो उसे फील्ड में नहीं मिल पाती. फील्ड का एटमॉस्फेयर उसके लिए अच्छा नहीं होता. तो हम क्या करते हैं, उन्हें नर्सरी में ग्रो करते हैं. कहाँ ग्रो करते हैं, नर्सरी में ग्रो करते हैं. फिर जब वो ग्रो हो जाते हैं और इस लायक हो जाते हैं कि वो खुला इन्वायरमेंट, ओपन इन्वायरमेंट एक्सपीरियंस कर सके, देन वी कैन प्लांट देम टू दी फील्ड. ओके, दिस इज नोन एज ट्रांसप्लांटेशन. एंड सम एग्जांपल्स ऑफ प्लांटेशन सीड्स आर चिली, टोमेटो, पैडी. ओके, पैडी मीन्स धान, ठीक. Okay, now you are watching the image of a person who is spreading the seeds or sprinkling the seeds in the field, and this is the very common practice of agriculture, and this process is known as broadcasting. Method of sowing seed by scattering them over the surface of the soil. It can be done by hand or can be done by seed drill. ये सीड ड्रिल से भी किया जा सकता है. ओके, एक डिवाइस होता है प्लांटर से भी किया जाता है, ठीक है. एंड आई थिंक दिस इज योर होमवर्क. इफ़ यू फाइंड आउट द एग्रीकल्चरल टूल अलॉन्ग विद द फोटो and submit this homework on my WhatsApp number. Okay, now let's move to the next topic. Okay, now you have seen the farmer is plowing the field along with the crop. I think he's became insane. ये पागल हो गया है क्योंकि ये क्रॉप के साथ ही इसने फील्ड को क्या कर दिया है, प्लो कर दिया है. इज इट पॉसिबल? हम कभी भी प्लोइंग क्रॉप की कब करते हैं, प्लोइंग हम फील्ड की कब करते हैं, जब कोई क्रॉप नहीं लगी होती है ना. फर्स्ट स्टेप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इज plowing. First step, in which first step we plow the field, but he is plowing along with the crop. How can we harvest now? Why he is plowing the field along with the crop? The reason behind that, he is trying to prepare a manure. ये खाद बनाना चाहता है organic. But how he can prepare this organic manure? So this is a very common technique, as you have learnt in your earlier classes, that the some plants, or you can say not some plants, dead decaying body of plants and animals decomposed and can convert into the humus. Am I right? You have learnt in your earlier classes that the humus is present in the soil and it is formed of dead decaying plants and animals. So we grow some plants, okay, we grow some plants in the field and then just plow the crop. What happens then? The plant when plowed, then its root detached, इसकी रूट अलग हो जाती है प्लांट से, और प्लांट धीरे धीरे इट स्टार्ट्स डिकम्पोजिशन. इसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है एंड देन गेट कन्वर्टेड टू ह्यूमस. ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ह्यूमस में. एंड द ह्यूमस प्रोड्यूस और द मैन्योर प्रोड्यूस्ड इज नोन एज ग्रीन मैन्योर बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स. ओके, सो ग्रीन मैन्योर इज ग्रोइंग प्लांट्स. ये फर्टिलाइजर होती है जो ग्रोइंग प्लांट्स को प्लो कर देते हैं जब सॉइल में, उससे बनती है. ये कैसे हो सकती है, जैसे आपके पी प्लांट होते हैं, बीन्स होते हैं, पल्सेस होती है या घास होती है, इसकी प्लोइंग कर दी जाती है. ओके, नाउ द नेक्स्ट, फील्ड फैलो. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एंड यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट. जस्ट इमेजिन कि हमने एक क्रॉप लगाई फील्ड में. अब वो क्रॉप जो थी उसने जितना भी न्यूट्रिएंट ज़मीन से लेना था उसने लिया, और फिर जैसे ही वो क्रॉप कटी हमने कटाई की और नई फसल लगा दी. फिर उसके बाद फिर नई फसल लगा दी. अब अगर आप ध्यान से सोचो कि ज़मीन में न्यूट्रिएंट्स तो एक डेफिनेट अमाउंट में होते हैं और वो रिप्लेनिश होने में टाइम लगता है. इट विल टेक टाइम टू रिप्लेनिश ऑल द न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल बैक. बट इफ़ यू ग्रो अगेन एंड अगेन मीन्स देयर इज नो
time to replenish the nutrient, then how can soil will be enriched from the nutrient? So for making soil enriched, we need to leave the field for some time to replenish all the nutrients. So we leave the field uncultivated for a season. एक कुछ समय के लिए हम क्या करते हैं, फील्ड को छोड़ देते हैं ताकि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, जितनी साइकिल्स पॉसिबल है नेचर की, जिससे हम नेचर से लिया नेचर को वापस करते हैं, उन साइकिल्स के बाद हमारी सॉइल क्या होती है, रिप्लेनिश हो जाती है और अब हम उसमें नई क्रॉप लगा सकते हैं. ठीक है, मैं राइट. द नेक्स्ट टर्म इज मिक्स्ड क्रॉपिंग. ओके नाउ, जब हम खेती करते हैं तो हम बहुत सी प्रैक्टिसेस और यूज़ करते हैं. तो उनमें से ही एक होती है मिक्स्ड क्रॉपिंग. मिक्स्ड क्रॉपिंग मतलब वी आर ट्राइंग टू कल्टिवेट मोर देन वन क्रॉप इन अ फील्ड एट अ टाइम. हम एक से ज़्यादा क्रॉप फील्ड में लगाने की कोशिश करते हैं. ऐसा क्यों करते हैं? लालची हो जाते हैं? नहीं, लालची नहीं हो जाते हैं. द रीज़न बिहाइंड दैट कि देखो, एक टाइप की क्रॉप लगाने पर वो एक स्पेशल टाइप का न्यूट्रिएंट ही कंज्यूम करेगी, ढेर सारी अमाउंट में करेगी ना, क्योंकि एक क्रॉप की स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है. लेकिन हम जब दो टाइप की क्रॉप लगाएंगे तो दोनों क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी ना. तो जब दोनों क्रॉप की रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी तो जो ज़मीन पर न्यूट्रिएंट का लोड है वो अचानक से बढ़ेगा नहीं. जस्ट इमेजिन कि आपने एक क्रॉप वीट लगाई, आपने दूसरी क्रॉप सनफ्लावर लगाई. ठीक है, तो अब हुआ क्या, सनफ्लावर को मान लिया कि बहुत ज़्यादा जिंक की ज़रूरत पड़ती है, सनफ्लावर को बहुत सारी जिंक की ज़रूरत पड़ती है और वीट को बहुत सारे फास्फोरस की ज़रूरत पड़ती है. इमेजिन द कंडीशन. अब क्या हुआ, अगर आप खाली वीट लगाते तो वो ज़मीन का सारा फास्फोरस पी लेते ना. लेकिन अब आपने क्या किया हुआ, सनफ्लावर लगाया हुआ है आधी फील्ड में आपने क्या लगाया हुआ है, वीट लगाया हुआ है. तो अब आधी फील्ड में जो आपका ना फास्फोरस और आधी फील्ड में जो आपका जिंक है, इसके ऊपर लोड कम हो गया. तो अब ज़मीन पूरी की पूरी सारे न्यूट्रिएंट लेने की कोशिश ज़मीन से सारे न्यूट्रिएंट लेने की कोशिश होगी. तो इस प्रोसेस में क्या होगा, कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट ज़मीन से खत्म नहीं होगा. ठीक है, तो मिक्स क्रॉपिंग में पहला रीज़न क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट हो जाता है दोनों क्रॉप में, जिससे सॉइल का न्यूट्रिशन लॉस नहीं होता. दूसरा इंपॉर्टेंट क्या होता है, अगर एक फसल में कीड़ा लग गया या कोई बीमारी लग गई तो दूसरी फसल बच जाती है, होता है ना, क्योंकि कीड़ा हर टाइप की जो फसलें होंगी, आगे चल के आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो. इन दैट चैप्टर आई विल टेल यू सम स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्लांट्स affected from a specific type of microbe. Okay, not all kind of bacteria or all kind of pathogens affect all kind of crops. Some specific bacteria causes specific disease in specific plants. Okay, so mixed cropping से क्या होता है, एक फसल अगर ख़राब हो गई तो दूसरी बची रहती है. क्रॉप रोटेशन का तरीका भी ये कुछ मिक्स क्रॉपिंग के ही तरीके को ध्यान में रखकर बनाया गया है. अब जैसे हमने क्या किया, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमने पहली बार जो फसल लगाई वो गेहूं की लगाई, अब हम दूसरी फसल गेहूं की नहीं लगाएंगे, क्योंकि पहली बार हमने सारा का सारा क्या यूज़ कर लिया था, फास्फोरस मान लिया यूज़ कर डाला था. तो अब हमने दूसरी फसल लगाना होगा जिसमें हम क्या करेंगे, फास्फोरस कंजम्पशन कम हो. तो हमने क्या किया, सनफ्लावर लगा दिया. दूसरी वाली जो हमारी फसल है वो क्या है, सनफ्लावर, क्योंकि अब सनफ्लावर क्या लेगी, जिंक, वो फास्फोरस तो लेगी नहीं. तो इसका मतलब ज़मीन से जो फास्फोरस का लोड है वो रिप्लेनिश होने में टाइम मिल जाएगा, उसे आराम से फास्फोरस रिप्लेनिश हो सकता है, क्योंकि सनफ्लावर तो फास्फोरस ले नहीं रहा है. तो क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग सीरीज ऑफ डिसिमिलर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स इन अ सेम एरिया इन सीक्वेंस रीजन. एक सीज़न में एक फसल, दूसरे सीज़न में दूसरी फसल लगाने का तरीका. और जनरली हम लोग के फार्मर्स जो होते हैं मोस्टली क्रॉप रोटेशन फॉलो करते हैं. ठीक है, क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स, कुछ केमिकल्स होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन करने के लिए, जैसे इंसेक्टिसाइड्स. ठीक है, इंसेक्ट मारने के लिए जिनका हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंसेक्टिसाइड्स. पेस्टिसाइड्स, पेस्ट मतलब जो खेत में चूहे, खरगोश, मोल्स, ये सब आ जाते हैं ना, जो खेतों में बरोज या भार बना देते हैं, बिल बना देते हैं और जड़ों को हार्म पहुंचाते हैं. तो ऐसे एनिमल्स को मारने के लिए पेस्टिसाइड यूज़ की जाती है. ठीक है, हर्बिसाइड्स एज यू नो द वर्ड हर्ब इज देयर इन दी हर्बिसाइड. सो हर्ब मीन्स वी वांट टू किल द हर्ब एंड द हर्ब इज वीड्स हियर. द हर्ब इज वीड हियर, नॉट द क्रॉप प्लांट. सो वीडिसाइड्स आर यूज्ड टू रिमूव द वीड्स. And there is a name of DDT here, very important insecticide. You have heard the name of DDT. The full form of DDT is dichloro-diphenyl trichloroethane. DDT जो है, अब इसका यूज़ नहीं होता क्योंकि ये हार्मफुल होती है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी में इसका हार्म बहुत होता है, इसीलिए अब इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया जाता. ठीक है, इसका छिड़काव किया जाता है कभी कभी नदी नालों में कर दिया जाता, नदी में तो नहीं करना चाहिए, नालियों में कर दिया जाता है, ताकि वहाँ पे जो इंसेक्ट्स हैं उनकी ग्रोथ ना हो. ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ थ्रेशिंग. थ्रेशिंग का मतलब आप आई थिंक यू हैव लर्न दिस थ्रेशिंग इन योर अर्लियर क्लासेज, आई थिंक इन क्लास 7th और क्लास 6. थ्रेशिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द ईडेबल पार्ट ऑफ ग्रेन फ्रॉम द चाफ, यानी जो खाने वाला हिस्सा है उससे छिक्कल को अलग कर देना. दिस इज नोन एज थ्रेशिंग. ठीक है, गेहूँ से उसका छिक्कल अलग करना, दिस इज थ्रेशिंग. एंड थ्रेशिंग कैन बी डन बाय हैंड्स, कैन बी डन बाय एनिमल्स और कैन बी डन बाय मशीन्स लाइक थ्रेशर.
like thresher or combine can done two works at a time, that it can harvest the crop and it can thresh the crop at a time. Okay, now the next, winnowing, when we harvest the crop and when we thresh, the threshing is done, some small chaff particles remain, means lighter particles remain in the grain. Then we remove the small lighter particles of this chaff, dirt, okay, with the help of the wind, high speed wind. In the diagram you can see a lady is doing winnowing, the grains. In this process, these, you can see here, these lighter particles, these are lighter particle and this is grain. तो grain जो होता है वो नीचे गिर जाता है, lighter particle हवा के प्रेशर की वजह से आगे मूव हो जाता है. ओके, now next process, eutrophication. In the diagram you can see a lake, it looks blue, and a lake it looks green. अधिकतर नदियों में, अधिकतर तालाबों में आपने देखा होगा कि तालाब, नदी क्या होती है, इनमें जो दिख रहा होता है कलर, एक्चुअली इट मस्ट बी द रिफ्लेक्शन ऑफ द सराउंडिंग, एंड मोस्टली सराउंडिंग आइदर इज ग्रीन और द स्काई इज रिफ्लेक्टेड इन द वाटर बॉडी. तो इफ़ यू आर एबल टू सी द कलर ऑफ वाटर इज ग्रीन, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ एल्गल ब्लूम, इट इज़ बिकॉज ऑफ द एल्गल ब्लूम. यूट्रोफिकेशन होता क्या है, इसको हम बहुत ध्यान से समझ लो, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए, यूट्रोफिकेशन. तो यूट्रोफिकेशन अगर हम ग्रीक वर्ड की बात करें तो यूट्रोफॉस से बना हुआ है. इससे बना हुआ है यूट्रोफॉस. यूट्रोफॉस का मतलब होता है वेल नरिश्ड हो जाना. क्या होता है ना, खूब अच्छे से न्यूट्रिशन मिल जाना, तगड़ा तरोताज़ा हो जाना. अब या इसे हम हाइपरट्रॉपिकेशन भी कहते हैं. क्या कहते हैं, हाइपरट्रॉपिकेशन. इसमें क्या होता है, जब वाटर बॉडीज़ जो होती हैं इनके अंदर स्पेसिफिक टाइप के न्यूट्रिएंट बहुत लार्ज क्वांटिटी में इकट्ठा हो जाते हैं, जैसे कोई नाइट्रेट हो सकते हैं, जैसे फॉस्फेट हो सकते हैं. अगर ये लार्ज क्वांटिटी में स्टोर हो जाते हैं तो क्या होता है, जो वाटर बॉडी होती है उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. ऑक्सीजन का अमाउंट रिड्यूस हो जाता है बिकॉज वाटर कंटेन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन. वाटर कंटेन्स डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड ऑल द एक्वेटिक एनिमल्स रिक्वायर्ड दैट डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन for their respiration, and this respiration can be done only with the help of the dissolved oxygen. So if this algal bloom happens in the water body, this reduces the biological oxygen, this increases the biological oxygen demand in the water. Why this increased biological demand of oxygen? Because algal bloom makes a layer above the surface of the water, over the surface of the water, and it does not allow atmospheric oxygen to enter into the water. If water cannot add to the water, if oxygen cannot be add to the water, how it can be enriched with the oxygen? तो एल्गल ब्लूम क्या होती है, उससे ऑक्सीजन जो होती है वो पानी में डिजॉल्व नहीं हो पाती सही से, और जिसकी वजह से क्या होता है, नीचे ऑक्सीजन, लाइट, सब कुछ जाना बंद हो जाता है. काई जो देखा होगा आपने, काई जो होता है तालाबों के ऊपर, उससे क्या होता है, एक लेयर ऊपर बन जाती है, तो नीचे जो होता है ना तो ऑक्सीजन पहुँचती है ना लाइट पहुँचती है, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है. ठीक है, तो इससे ऑक्सीजन का अमाउंट भी कम हो जाता है. अब ये यूट्रोफिकेशन का मेन कॉज क्या होता है, ये मेन कॉज यूट्रोफिकेशन का एग्रीकल्चर ही होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में हम बहुत सारे पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड और या बहुत सारे यूरिया, ये सारी चीज़ें डालते हैं, और ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्पेसिफिक काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट होते हैं, और लार्ज क्वांटिटी में इनको जब हम खेतों में डालते हैं तो पानी के साथ, एग्रीकल्चर 7th में हमने पढ़ा है कि पानी जो होता है सबसे ज़्यादा वेस्ट किस में होता है, एग्रीकल्चर में. तो पानी के साथ वो सारा केमिकल वाटर बॉडीज़ में जाता है, और यही फॉस्फेट, यही नाइट्रेट वाटर बॉडीज़ में जाके क्या कर देते हैं, पानी को ओवर नरिश्ड कर देते हैं, वेल नरिश्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से उसमें क्या हो जाती है, एल्गल ब्लूम हो जाती है. क्या हो जाती है, एल्गल ब्लूम, एंड दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द वाटर बॉडीज़. Okay, the students, now the chapter is finished. We will solve the exercise after some time. So if you have any query, you can ask to me on my WhatsApp number. Thank you, students.